Once we done with our installation of codecs, VLC and everything, Premiere जब install होगा तो पहली screen आपके सामने आएगी वो ये है. This is also called your welcome screen. Welcome screen from Premiere. इसको अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको सबसे पहले 3 folders बने नजर आएंगे. Those folders are to make a new project, to open a project, and the third one is for the help. अगर आपने already किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और वो आपने सेव किया हुआ है तो वो भी आपको इधर ऊपर रीसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर नजर आने शुरू हो जाएंगे. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने पुराना प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करो इसके ऊपर काम करना है या यू विल स्टार्ट अ न्यू वन. सो एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू वन, सो आई विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. नाउ as soon as you press a new project, the first window which opens up in front of you is the project settings. This is a very important thing for you to work in future. आप यहाँ पे असल में वो settings बताते हो जो आपने जिस project के ऊपर आपने काम करना होता है. जैसे आपके TV के ऊपर 2 type के standards होते हैं, that's NTSC and PAL. As you can see on the left hand side of your presets, they are the number of presets जो आपके काम के लिए यहाँ पर Adobe की तरफ से बनाए गए हैं. It is your duty, it is your job to identify the best possible from here. As I've told before कि आप पाकिस्तान में रहकर जो भी स्टैंडर्ड के ऊपर काम करोगे that is PAL. So you have DV 24p, you have DV NTSC, you have DV PAL, HDV which is for the high definition videos of course, and the last one is your mobile and devices. मोबाइल एंड डिवाइसेस इज द फोल्डर जिसके अंदर आपको वो प्रीसेट्स मिलेंगे जो आप आईपैड, आईफोन या अपने किसी मोबाइल सैमसंग वगैरह में कोई वीडियो इंपोर्ट करवाना चाहते हैं बाद में. सो यू जस्ट टेक एनी स्टैंडर्ड फ्रॉम हियर. बट फॉर द टाइम बीइंग एज वी आर गोना वर्क फॉर प्रोफेशनल लेवल और हमने जो है इसको बाद में काम को ब्रॉडकास्ट करना है तो हम मोस्ट प्रोबेबली DV PAL के अंदर जाते हैं. एज वी ओपन अप द DV PAL फोल्डर, we have 4 different kinds of presets there. I would like to mention here कि जो आपकी ये जो 4 different type के जो presets हैं, they are mainly under 2 categories. One is your standard and another one is your widescreen. What is the difference between them? Standard is a standard. That means कि अगर आपने TV पुराने चलते देखेंगे, that size जो बिल्कुल कोनों पे साथ लगा होता है आपकी TV के, that is your standard size. उसको हम 4:3 भी कहते हैं. The another preset जो आपको यहाँ पे मिलता है that is your widescreen. Widescreen मोस्टली आपको फिल्म्स अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको नजर आता है जिसमें ऊपर और नीचे से आपको काली पट्टी नजर आती है और आपका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा चिपटा नजर आता है. Now the frame size या frame ratio जिसको आप कह सकते हैं जो उसमें यूज होती है that is 16:9. That's mean it's longer than it's how high it is. So 16:9 and 4:3, that's the difference. Or 4:3 is frame by frame, but widescreen is your CinemaScope. ऊपर से नीचे से काली पट्टियां, as you have seen in different films already. जो another difference जो आपको नजर आएगा in presets के आगे वो 32 kHz and 48 kHz का नजर आएगा. kHz stands for kilohertz. It is the measurement for the sound. बहुत सारे कैमरास जो हैं वो 32 किलोहर्ट्ज के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं. Some of them they record on 48 kilohertz. So it is your duty to identify here कि आपने जो कैमरे से शूटिंग की है whether it is done on 32 kilohertz or 48 kilohertz. Also, you can click on these presets to see the description on the right hand side and you can also see the journal options for it. जैसे ये देखिए कि मैं स्टैंडर्ड के ऊपर अगर क्लिक करूंगा so I can on the right hand side easily see that it is for editing with IEEE 1394 Firewire of course. और ये स्टैंडर्ड PAL की वीडियो है जो 4:3 इंटरलेस्ड आपको फ्रेम देगी. वेरी सिंपल. और जैसे ही आप वाइड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड अगेन कि दिस इज फॉर वाइड स्क्रीन PAL वीडियो एंड इट यूजेस 16:9 इंटरलेस्ड. एज वी हैव डिस्कस्ड कि भाई कितने किस्म के प्रीसेट्स होते हैं आपके पास. I would like you to remember one thing again and again कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं या आपने जो आउटपुट निकालनी है वो पाकिस्तान या एशिया या ऑस्ट्रेलिया
किसी भी या यूरोप से किसी भी रिलेटेड कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं तो आप पाल के ऊपर काम करेंगे. इफ यू आर वर्किंग फॉर अमेरिका और इफ यू आर वर्किंग फॉर जापान देन यू हैव टू वर्क विद NTSC. आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर कि जब फिल्म रिलीज होनी होती है तो उसके दो, या आपका कोई टीवी प्रोग्राम जो इंटरनेशनली चल रहा होता है तो उसके दो स्टैंडर्ड्स रिलीज किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ रीजन्स में उनको भेजना होता है. सो द चाइना people or the Pakistan people will get the PAL standard and the America and the Japan people will get the NTSC standard. So as we have discussed this, I would also like you to see this custom settings on the top right tab. ये custom settings आपकी बिल्कुल सेम वही settings हैं जो भी हमने presets में से choose की हैं, but with the help of these settings आप अपने settings को या अपने presets को alter कर सकते हो अपनी मर्जी के लिहाज से. As you can see in the custom settings, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो जनरल ऑप्शंस हैं इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑन द राइट हैंड साइड दी सेटिंग्स एक्चुअली आर द सेम विच आर फॉर द प्रीसेट्स जो हमने पहले देखे हैं. इसमें सबसे पहले आपके पास जो एडिटिंग मोड है वो DV पाल का है बिकॉज वी हैव चूज पाल स्टैंडर्ड बिफोर, और नीचे आपके पास जो टाइम बेस आ रहा है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड का आ रहा है. सो एज यू कम डाउन यू हैव पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो. नाउ आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड that there is variation between the frame and the pixel aspect ratio. आपका जो फ्रेम होता है जो आपको वीडियो पे के ऊपर या टीवी के ऊपर नजर आ रहा होता है, it is made up of pixels. Pixels are those small dots जो आप कभी स्क्रीन के करीब होकर दिखेंगे तो आपको नजर आते हैं, जिनसे मिलके आपका इमेज या आपकी वीडियो बनती है. उस पिक्सल की एक रेशियो होती है, दैट्स मीन उसकी भी लेंथ और हाइट होती है. कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो मिलती है दैट इज 1 मींस कि जितना वो लंबा है उतना ही हाइट में ऊंचा है. तो मोस्टली जो 1 पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको कंप्यूटर्स के अंदर मिलती है. यू गेट दैट इन कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. फॉर वाइड स्क्रीन यू हैव 1.2 पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो. दैट्स मीन कि ये जो आपका पिक्सल है थोड़ा सा लंबा होगा बनिस्बत जितना वो ऊंचा होगा, जिसकी वजह से आपको जो वाइड स्क्रीन के ऊपर फ्रेम मिलता है वो लंबा और चिपटा होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो एंड यू कैन सी दिस हियर विद द पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो इन फ्रंट. इट इज यूजिंग 1.067 विच इज फॉर द टीवी. जस्ट फाइन, ये टीवी के लिए आपका पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो यूज होता है. आई वुड आल्सो लाइक यू टू अंडरस्टैंड दिस टाइटल सेफ एरिया. दिस इज द एरिया जो एडिटर्स को मदद करता है कि आपने इस एरिया के अंदर रह के सारे के सारे एक्शंस और टाइटल्स लगाने हैं. टाइटल मीन कि जैसे किसी का नाम लिखा हुआ आता है फॉर एग्जांपल, या आप किसी न्यूज चैनल के अंदर टिकर चलते हुए देखते हैं, दैट इज ऑल टाइटल्स. सो देयर इज सेफ एरिया, टाइटल सेफ एरिया एंड एक्शन सेफ एरिया आइडेंटिफाइज दैट एरिया कि जिसके अंदर रह के आपने फ्रेम में काम करना है. एज वी विल गो फर्दर एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग विद द प्रोग्राम, तो ये मैं आपको इन डिटेल आराम से दिखाऊंगा. एज वी हैव डिस्कस these stuff and you have seen that most of them are almost similar to the one which are in the presets. So आपने जैसे ही standard अपना standard 48 kilohertz select किया, you come down and here you have to tell the location and the file name of the project जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं. Premiere is from very few softwares जो कि promote करता है अपने users को कि आप पहले लोकेशन और फाइल नेम बताएंगे एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग विद योर वीडियोस. ये इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि प्रीमियर को काम करते वक्त बहुत सारी फाइल्स बनानी पड़ती हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसको उसकी लोकेशन आप यहां पर ब्राउज करके बताएं. सो ब्राउज डेस्कटॉप, मेक न्यू फोल्डर एंड आई कैन नेम दिस फॉर एग्जांपल test 1 and I press OK, and as soon as I press OK it will come back to the project settings window और यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा. I will give it a name here and let me call this test 1 and after that you are just good to go. Press OK और जैसे आप OK दबाओगे तो आपके सामने ये प्रीमियर खुल जाएगा. आपको मुख्तलिफ पैनल्स नजर आएंगे इसके अंदर. These panels actually are the workspace or you can say already set by Adobe for your working. Panels के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं so you will see a yellow border around them. That means that panel is selected
it is ready for your working. जब कोई शॉर्टकट कीज यूज करते हैं किसी पैनल के ऊपर तो वो तब ही एक्टिवेट होती हैं जब उसके इर्द गिर्द येलो बॉर्डर आपको नजर आ रही हो. So the first on the left hand side is your project panel. It is used to import your clips. In other words, better I should use media. Media means कि उसमें audio, video, graphics सारे आ जाते हैं. तो आपका जो project panel है इसमें हम अपने assets या अपना media जो है वो import करवाते हैं. Right beside is your source monitor. Source monitor is that monitor जो आपको आपके raw footages दिखाता है जैसे वो record रहे होते हैं with no editing, with no effects, nothing at all. It is also like a splicer. The next, just beside, is your program monitor. Program monitor shows you the final output. That means कि आपने जो भी काम किया है, जो भी उसके ऊपर color correction लगाई है, उसको edit किया है अपने clips को, वो सारी की सारी end पे कैसी दिखेगी आपको. These program, you should also remember at this point कि ये जो आपका program monitor है, ये वो settings दिखाता है जो हमने शुरू में प्रोग्राम सेटिंग्स की बताई हैं. दैट्स मीन कि अगर आपने शुरू में स्टैंडर्ड यूज किया है तो इधर जो आपको फ्रेम का साइज प्रोग्राम मॉनिटर में मिलेगा वो 4:3 का मिलेगा. लेकिन अगर आपने शुरू में प्रोग्राम सेटिंग्स के वाइड स्क्रीन यूज की है पाल स्टैंडर्ड के अंदर तो आपको जो प्रोग्राम मॉनिटर में जो फ्रेम मिलेगा दैट वुड बी 16:9. जो प्रोग्राम मॉनिटर है इसका फ्रेम चेंज नहीं होता बट ऑन द अदर हैंड द सोर्स मॉनिटर इट चेंजेस इट फ्रेम्स बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स मॉनिटर जो है वो आपको प्रीव्यू दिखाता है या वो आपको व्यू दिखाता है अपने आपके क्लिप का जिसको आपने एडिट करना होता है. सो डिफरेंट क्लिप्स और डिफरेंट मीडियाज हैव डिफरेंट रेजोल्यूशंस, दे हैव डिफरेंट फ्रेम साइज. ऑन द राइट हैंड साइड डाउन हियर यू कैन सी दिस ऑडियो लेवल्स. ये आपको हेल्प करते हैं जब आपने ऑडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो उसको एडिट करना हो या अपने किसी ऑलरेडी रिकॉर्डेड मीडिया को या ऑडियो को एम्पलीफाई डी एम्पलीफाई करना हो. सो आपकी ऑडियो लेवल जो है इसके लिए बड़े करामत होते हैं. जस्ट बिलो इट इट्स योर टूल बार, इट्स अ मेन टूल बार. ये वो टूल्स हैं जो आपके टाइमलाइन के ऊपर इस तरफ यूज होते हैं. टाइमलाइन ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर आप मोस्टली अपने क्लिप्स को और ऑडियोज को और ग्राफिक्स को प्लेस करते हो इन अ फॉर्म ऑफ लेयर्स. Now, because of this timeline, we actually can edit and we actually can take out each and every single frame from our project. Timeline is a very important thing और NLE का main फायदा आप समझ लें कि timeline से हमें मिलता है. ये timeline आपको almost उस हर सॉफ्टवेयर के अंदर नजर आएगी जिसमें आप एनिमेशन कर सकते हैं like Flash for example, like 3D Studio Max for example. ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको 3D का काम या 2D का काम करने के साथ साथ एनिमेशन भी प्रोवाइड करते हैं. और प्रीमियर में भी ऐसे ही है कि प्रीमियर में हम वीडियो एडिटिंग के साथ ऑडियो एडिटिंग के साथ साथ हम एनिमेशन भी उसमें कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस टाइमलाइन एंड इट्स वेरी हेल्पफुल. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय डिफॉल्ट देयर इज एन इन्फो पैनल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इन्फो पैनल एक्चुअली शोज यू द इन्फो अबाउट द मीडिया यू हैव सिलेक्टेड. But it's better to keep effects on top here because हमारा mostly काम जो है वो effects panel के साथ होता है.